چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پچھلے مرتبہ ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں پہلے، انہیں دیکھ لیں ذرا، ان کا ایک ریویو لے لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ بالکل آغاز سے چلیں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے کہ علم النحو جو ہے، اس کی ڈیفینیشنز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ علم النحو کہتے کسے۔ جملے سے متعلق ہم، علم ہوتا اور علم الصرف کیا ہے؟ ہے، لفظ سے متعلق، جو لفظ سے مورفولوجی۔ ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اصطلاحات ڈسکس کی تھی، کسرہ، فتح، ضمہ، سکون، حرکت، یہ سب کو کلیئر ہے نا کہ ہر ایک سے کیا مراد ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، پھر کلمہ کی جو تین ٹائپس ہیں، اسم، فعل، حرف، وہ ڈسکس کیے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب کی دو ٹائپس کی تھیں، مرکب ناقص ہے وہ جملہ ہے، پھر اسی طرح جملے میں دو ٹائپس ہیں، اسمیہ، فعلیہ۔ پھر اسم کی ہم نے کچھ ڈویژنس پڑھی، جن میں ایک معرفہ و نکرہ ہے، ایک مذکر و مؤنث ہے، اور پھر واحد، تثنیہ و جمع۔ یہ سب باتیں کلیئر ہیں یا اس میں کوئی چیز ہے جس میں کسی کو کوئی اشکال ہے؟ جی کلیئر ہے شیخ۔ کلیئر ہے؟ صحیح۔ اچھا، معرفہ کی کتنی ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی؟ کون کون سا پانچ۔ اسم معرفہ ہوتا ہے؟ جی بتائیے گا کون کون سی؟ اس میں علم، کسی کا نام، پراپر ناؤن جس میں علی یا کسی بھی چیز کا پراپر نام، یہ اس میں علم ہو گیا، اور اس میں اشارہ، اس میں ٹھیک ہے، پروناؤن، یہ وہ وہاں۔ اس میں ضمیر، ٹھیک ہے۔ ہم۔ ہوں اس میں موصول میں ریلیٹو ڈسکرپشن ہوتی ہے، جو لنکنگ ورڈ ہوتے ہیں، جو جس جہاں۔ ٹھیک ہے۔ اور ضمائر، پروناؤنس، میں یا آپ، اور معرف باللام جس میں ال لگتا ہے پہلے۔ ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول، ضمیر، اور معرف باللہ۔ چلے بہتر۔ مذکر و مؤنث میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ مؤنث کے لیے تائے مربوطہ یا تائے مدورہ کہتے ہیں اس کو، تائے مدورہ۔ مدورہ۔ ٹھیک ہے۔ اور مذکر مذکر کے لیے اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں پتا مجھے۔ وہ وہ جس میں اسم یعنی جس میں تعین- طے تانیث وغیرہ کی علامت نہ پائی جائیں۔ ٹھیک ہے، بس تائے تانیث سے فرق کرتے ہیں نا، وہی تائے مدورہ جو بولتا ہے، وہ جس اسم کے اینڈ پہ وہ مؤنث ہے، اور جس کے اینڈ پہ نہیں ہے تو وہ مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اسم ہوتے ہیں جن پہ گولتانی ہوتی، پھر بھی وہ مؤنث ہی یوز ہوتے ہیں۔ اچھا، اور واحد، تثنیہ اور جمعیہ ہم دیکھی تھی، تین ٹائپس ہیں عدد کے اعتبار سے، تو تثنیہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جو آخر میں الف اور نون مفتوحہ آ جائے تو یہ تثنیہ ہوگا۔ ہاں، واحد کے اینڈ پہ الف و نون مکسور ایڈ کرتے ہیں، الف و نون زیر والا، جیسے قلم سے قلمان۔ اور جمع کتنی طرح کی ہے عربی میں؟ وہ جو آخر میں آ، آ، واو جی ساکن دو طرح کی۔ مکسور آ جائے، نون مفتوحہ۔ جی لہراسب، لہراسب آپ جی بتائیں۔ جی جمع دو قسم کی ہوتی ہے، کہ جمع سالم اور جمع مکسر۔ پھر آگے جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صحیح، اس میں جمع مکسر ہم کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر وہ کہ یعنی جس چیز سے جمع بنائی جائے، وہ اس کا جو بھی حرف ہے وہ سلامت نہ رہے، وہ ٹوٹ جائے۔ واحد ڈفرینٹ ہو اس کا، ٹھیک ہے، جمع سے۔ اور جمع مذکر سالم جو ہے وہ واحد میں کیا ایڈ کر کے بناتے جی جمع مذکر سالم جو ہے اس میں واو اور نون ایڈ کر کے بنتا ہے، ہیں؟ ٹھیک اور ہے۔ یا اور نون ہم، اس ٹھیک کے ہے۔ آخر میں ایڈ کرنے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا
ठीक है, और मुअन्नस सालिम? जी मुन्नस सालम के आखिर में अलिफ और ता का इजाफा किया जाता है तो उससे बनता है। सही, चले बेहतरीन हो गया। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, आपसे अब मैं पूछ लेता हूँ कुछ लोगों से जरा। अब्दुल्ला रफीक। अब्दुल्ला, ये लफ्ज है एक, नहीफ। ठीक है। हाँ जी। और ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है पतला। अगर हमें ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना हो तो क्या लफ्ज बनेगा? तो जरा मुअन्नस कीजिएगा इस लफ्ज को। माजरत, मेरी आज पहली क्लास है, मैंने भी ज्वाइन की है, लेकिन मैं कोशिश कर देता हूँ। नहीं पतन हो जाएगा। नहीफा, ठीक है। नहीं ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। जी आमिना। जी सर। ये लफ्ज है रजुल। इसका तस्निया बनाइएगा। राजुलाइन। रजुलैनी। ठीक है, यानी दो बंदे। और इसकी एक और फॉर्म भी होती है, या के साथ भी हो सकता है, और इसके अलावा एक और भी हो सकती है फॉर्म। नून या राजुलाइन ये तो आपने बता दिया ना। या राजुलान। हाँ, रजुलान ये भी हो राजुलान। सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। जी असद। असद हैं, असद। असद रहमान। जी सर, सुन लो। जी भाई, ये इमरा का बताइएगा। इसका तस्निया क्या होगा? सर पिछले लेक्चर में सुन नहीं सका, इस वजह से नहीं बता सकता। जी तहरीम शाहिद। तहरीम आप कीजिएगा, ये इमरा जो है, इसका तस्निया बताइएगा क्या होगा? तहरीम नहीं है आपकी यहाँ पे। इरम आप कीजिए। ओके सर। इमरातैनी। इमरातैनी और। इमरातैनी। ठीक है, एक फॉर्म ये, और एक और भी हो सकता है, इसका एक और वेरिएबल है। इमरातुन। इमरातुन तो सिंगुलर है ना। लेकिन वो जो हम्म। तस्नीया है उसमें इमरातैनी भी यूज होता है, और या नून के अलावा एक और फॉर्म भी है ना, अलिफ जी। नून के साथ भी आ सकता है। अलिफ नून। हाँ, अलिफ नून। तो अलिफ नून के साथ क्या वर्ड है? इमरातानी। 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 हाँ। ठीक है, इमरा कहते किसे? औरत। ठीक है। जी अरिश्मा, कोई सवाल है आपका? नहीं सर, अरिश्मा। वो आंसर देने के लिए रेज हैंड चले, किया अच्छा आप फिर ये तिफल का कीजिएगा, यही तस्नीया। था। तिफलानी, तिफलैनी ठीक है, और और तिफल क्या तिफल। होता है? जी, हाँ, ये नहीं पता। तिफल यानी बच्चा। अच्छा। तिफलान या तिफलाइन दो बच्चे होंगे। जी फराज। फराज बशीर। जी शेख। भाई ये तिलमीज का बताइएगा तस्निया। तिलमिज़ैनी। तिलमीज़ैनी। और एक और सूरत भी हो सकती है। तिलमिज़ानी। तिलमीज़ानी, ठीक है। और ये कहते किसे हैं तिलमीज? पता नहीं। तिलमी स्टूडेंट। हाँ, तिलमीज स्टूडेंट है, यानी शागिर्द के लिए यूज करते हैं तिलमीज। ओके। चल रासिब। जी ये जमा मुज़क्कर सालिम बनानी है, मुमिन की। मुमिनुन से मुमिनूना और मुमिनीना। हाँ, दोनों तरह बन सकती है जमा, मुमिनूना या मुमिनीना। जी हुमैरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद, इसकी जमा कीजिएगा। आबिदीना। ठीक है। और हम्म, आबिदीना के अलावा एक और फॉर्म भी पॉसिबल है। आबिदूना।
आबिदूना, ठीक है। आबिदीना या आबिदूना, और मतलब क्या होता है इसका? बंदा और दो नहीं, बंदे बंदा। इबादत गुजार। इबादत हाँ, करने यस, बंदा होता है अब। ओके। आबिद है इबादत करने वाला, इबादत गुजार। तो आबिदून या आबिदीन होंगे इबादत करने वाले। ये दो नहीं है, ये ज्यादा है, ठीक है, तीन या उससे ज्यादा, ये जमा है। और ओके। अब जो होता है बंदा, उसकी जमा क्या होती है? अब की जमा मालूम है किसी को? इबाद सर। इबाद। आ, हाँ, इबाद होगी, ठीक है। तो इबाद कौन सी वाली जमा है? जमा मुजक्कर सालिम है, मुअन्नस सालिम है, जमा मुकस्सर है? मुकस्सर। मुकस्सर। मुकस्सर है, बिल्कुल ठीक है जी। रेहान, जी। ये साइम, साइम का बताइएगा, जमा क्या होगा? साइमोना, हम्म, साइमीना। ठीक है, और मतलब क्या है इसका? नहीं आइडिया। सौम या रोजेदार। सियाम। हाँ, रोजेदार, साइम होता रोजेदार, ठीक है। सौम है ना रोजा, उसी से ही है। जी रमशा, ये इसकी जमा मुअन्नस सालिम बनानी है लफ्ज़ों की। जैसे ये लफ्ज़ है काइमा, तो काइमा की क्या होगी जमा? जमा मुअन्नस। क़ाइमतानी। काइमा तानी, वो जमा तो नहीं होगा। अ, अ, काइमा तानी तो तान- तस्निया हो जाएगा ना। अ, अ, जमा मुअन्नस सालिम बनानी है, जिसमें एंड पे क्या होता है? अलिफ था। अलिफ ता। क़ाइमत अच्छा, ता। अगर इस तरह का सिंगुलर है ना, जैसे जिसके एंड पे गोलता है, जैसे कायमा जी। है, तो अगर आप जमा में अलिफ ता जब ऐड करते हैं तो फिर गोलता नहीं आती, ये गोलता हट जाएगी इससे। और मीम के बाद अलिफ ता पे ऐड करेंगे। ठीक है, का क़ाइमात। काइमात, यस, ठीक है। तो ये ठीक है। काइमातात नहीं होगा, काइमात। तो सही। अगर अलिफ ता आप ऐड कर रहे हैं जमा में, और सिंगुलर में गोलता है, तो वो आप हटा देंगे, फिर आप ऐड करेंगे अलिफ ता, यानी मुजक्कर वाली फॉर्म पे अलिफ ता ऐड होगा। जैसे कायम है ना, तो कायम जी से जी। काइमात का मतलब क्या ठीक होगा? है। कायम करने वाले। खड़े होने वाले। हाँ, खड़े होने वाले। कायम करने वाले जरा डिफरेंट वर्ड है, वो मुकीमीन होगा उसके लिए, ठीक है। ये है खुद ठीक। खड़े रहने वाले। तो कायमात ठीक। होगा खड़े रहने वाली है या क्याम करने वाली। ठीक। जी रमजान। जी सर। रमजान, ये नंबर 9 जो है साबिरा, इसकी क्या होगी जमा मुअन्नस? साबिरातुन। साबिरात, और मतलब क्या है? सबर करने वाला। नहीं, करने, ये मुअन्नस के लिए होगा, सब्र करने वाली, वालियाँ, सबर ठीक है, करने जैसे वाला। सब्र करने वाली औरतें। जी जी। तो ये फॉर्म है ये इसके लिए, मुअन्नस के लिए, ठीक है। अच्छा। जी जी सज्जाद। जी सर। सज्जाद, ये है वर्ड कतिफ, इसका तस्निया कीजिएगा। कतिफान। कतिफाइन। कतिफान। हाँ, कतिफैनी या कतिफानी, ये किसे कहते हैं? कतिफ। सर कतिफ। कतिफ। कतिफ कहते हैं शोल्डर्स को, कंधे जो है, सही सर। ठीक है। जी ठीक। समर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काब का बताइएगा तस्निया। सर काबानी। काबानी या काबैनी। और काबैनी, काबैनी। ठीक है। काब किसे कहते हैं? सर ये कोहनी को तो नहीं कहते? कोहनी को तो नहीं कहते, लेकिन कोहनियों टखने की तरह ही टखने होती है। कहते हैं। हाँ, टखने, टखने, टखनों अच्छा। को कहते हैं काबैन, ठीक है। पुराने पाक में है ना वो जो वुजू वाली आयत, जी लाल काबैनी, बिल्कुल। हाँ, इलल काबैन, टखनों तक। जी सनाउल्लाह। जी सर। जी भाई ये बताइएगा, ये आयत है, इसमें ये जो अल बहरैन आ रहा है, मरज अल बहरैनी यल्तक़ियान, अल बहरैन
का अदद बताना है आपने, ये तस्निया है या जमा है या वाहिद है? ये ये तस्निया है सर। तस्निया है तो इसका वाहिद क्या होगा? बहर, अल बहर। अल बहरू, बिल्कुल ठीक है। और तस्निया जैसे अल बहरैनी आया है, और तस्निया की एक और सूरत भी हो सकती है, बहरान, बहरानी भी आ सकता है। और बहर कहते किसे हैं? समंदर को सर। समंदर को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चले, अच्छी बात है। जी, सिदरा, सिदरा हैं, सिदरा अरशद। सोनिया आप बताइए। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? कई लोग हैं वो आगे से बोलते ही नहीं। जी, उम्मे कुलसूम। जी सर। ये बताइए, ये अस्साबिरीन जो इस आयत में है, वबशिर साबिरीन, साबिरीन जी सर, ये जमा है और ये जमा सालम। जमा सालिम है, ठीक है। और ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होगा? साबिर। साबिर, तो ठीक है। और तस्निया क्या होगा? तस्निया होगा साबिरात। नहीं सॉरी, ये होगा साबिरीन, तो साबिर, ऑलरेडी है। हाँ वो तो है ना पहले। साबिरात। नहीं साबिरात। सॉरी, ये हम्म मुअन्नस, ये तो मुअन्नस में चला जाएगा ये ना। जमा मुअन्नस हो जाएगी ना साबिरात अगर करेंगे, हाँ। तो तस्निया में क्या बनाएंगे? सर या नून और अलिफ नून, हम्म, साबिरान और हाँ। सा- साबिरीन। नहीं, साबिरीन राइन नहीं। होगा। यस, ये या तो साबिराइन। साबिरानी होगा या साबिरैनी। ठीक है। राइनी, रा के पर जबर होगी, जी सर। हाँ, तो या से पहले जबर हो ना तो तस्निया होता है, और जेर हो तो जमा है। तो जी साबिरानी सर। या साबिरैनी तस्निया है, और साबिरूना या साबिरीना जमा मुज़क्कर है। और अगर साबिरात है तो वो जमा मुअन्नस है। ठीक है सर, ये दोनों जमा यानी कि मुकस्सर नहीं सालिम है, वाओ नून और या नून वाला। लेकिन इसके कोई खास कंडीशन होती है कि कहाँ पे या नून वाली और वाओ नून वाली जी जी जी, जमा वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के जी इन। सर ठीक। मेरा ख्याल है कल या परसों वो टॉपिक आ जाएगा कि कहाँ वाव यूज करते हैं, कहाँ यार। ठीक है। जी सर ठीक। अच्छा जी, शाहिद मुश्ताक। शाहिद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब ये बताइएगा, ऐनानी फीहिमा ऐनानी नताक़तन, इसमें ऐनान जो है ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? ये तस्मीर आएगा सर। तस्निया है, बिल्कुल ठीक है। और वाहिद क्या होगा इसका? आइन, आइन। आइन होगा वाहिद, ठीक है। और मतलब क्या होता है इसका? प्रोफेसर नहीं करा। सही, ये आंखों को भी कह सकते हैं, और चश्मे, जो चश्मा होता है ना जैसे फाउंटेन जो है उसके लिए भी यूज होता है। तो जी सर। आइनैनी या आइनानी, दोनों फॉर्म्स आ सकती हैं। अच्छा, ठीक है जी। यासिर। शेख साहब यास एक बात पूछना है। जी जी। ये जो हम कहते हैं ना, ये आइनानी, ये तस्निया है तो ठीक है, लेकिन हमसे कोई पूछ ले कि ये आइनानी क्यों आइनानी तस्निया आपने बोला, तो हम वही कायदा बोलेंगे कि अलिफ और नून मकसूर में मिलाना है, जमा करना है, तो फिर ये तस्निया होगा। हाँ, आप यही बताएंगे कि मुफरत के बाद अलिफ नून का इजाफा हुआ ना इसमें, अलिफ और नून मकसूर का। तो जिस मुफरत यानी जिस वाहिद के बाद अलिफ और नून मकसूर का इजाफा हो वो तस्निया होता शुक्रान है। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका मुफरत यानी अलिफ नून हटाएं तो मुफरत बच जाए। जैसे आइनान का अलिफ नून हटाएंगे तो आइन बचेगा ना, और आइन की इसका वाहिद है। तो ऐसा लफ्ज जिसमें अलिफ नून ऐड किया गया हो वाहिद के बाद, वो फिर तस्निया होता है। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी। बारकल्लाह फीकुम जी। यासिर, यासिर अली नहीं है? जैनब, जैनब जहीर।
चलें, बेहतर है। चलें, उम्मीद है तो ये चीज़ क्लियर होगी होगी। आगे फिर चलते हैं। अब वाहिद, तस्नीया और जमा का मौजूद तो हमने कर लिया। उसके बाद आज अगला टॉपिक है इसम की टाइप्स में ही एक और हम किस्म पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि इसम मारिफा या नकिरा हो सकता है, मुज़क्कर या मुअन्नस आ सकता है, वाहिद, तस्नीया, जमा हो सकता है। इसी तरह एक और डिवीजन होती है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की। तो दो तरह का इसम होता है, कुछ इसम मुनसरिफ होते हैं, कुछ गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ का मतलब है सिंपली वो इसम जो तनवीन लेता हो या तनवीन ले सकता हो। जिस इसम के एंड पे तनवीन आ सकती है उसे हम मुनसरिफ कहते हैं। तनवीन आपको याद होगा, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तनवीन किसे कहते हैं? दो दो जबर दो जबर दो जेर जेर दो दो पेश। पेश। हाँ, जो दो, खबर दो बिल्कुल ठीक है, पेश। जो डबल हरकत है और जिसकी आवाज होती है नून साकिन की, एक एक्स्ट्रा नून साकिन जो होता है। जैसे कलमुन है या कलमन या कलमिन, तो हर एक के आखिर में एक नून साकिन हम बोल रहे हैं। ये नून साकिन जो है ये है तनवीन। तो अरबी में जो अक्सर अस्मा है, अस्मा की जो अक्सरियत है वो तनवीन ले सकती है या तनवीन लेती है। ठीक है, ऐसे तमाम अस्मा को हम कहते हैं मुनसरिफ, जो इसमें तनवीन ले सकता है। जैसे कलम है, जैसे किताब हमने बोला, किताबुन भी यूज होता है, किताबन, किताबिन। तो 95% आप कह लें कि इसम जो है वो तनवीन लेते हैं, तो वो मुनसरिफ है सबके सब। ठीक है। गैर मुनसरिफ जो है ये वो थोड़े से इसम हैं जो तनवीन नहीं ले सकते। सही है, इसका मतलब है कि आपने इसमें ये जहन में रखना है कि जनरल रूल ये है कि इसम तनवीन लेगा, और जी सर। कुछ इसमें जो तनवीन नहीं लेंगे, जो तनवीन नहीं लेंगे उनको हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। और उसको अब अभी हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से इसम होते हैं जो तनवीन नहीं लेते अरबी में। ये अभी फिलहाल बस हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं इसम की। आगे चल के जब हम अगला टॉपिक जैसे पढ़ेंगे एराब का, तो वहाँ ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। तो अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये चीज पढ़ने की जरूरत क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तनवीन कहीं आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन आगे जब हम एराब डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको इसकी अहमियत पता चलेगी कि मुनसरिफ है कोई इसम या गैर मुनसरिफ है। तो हर एक के इस्तेमाल का तरीका अलग है, उसके अपने अपने कवायद हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अस्मा की जैसे पहचान होनी चाहिए कि कौन सा इसम मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस है, कौन सा वाहिद है, क्या इसम तस्निया या जमा है। इसी तरह मारिफा नकिरा, तो उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इसम मुनसरिफ है और कौन सा गैर मुनसरिफ। इनकी तारीफ वाज़ेह होगी। मुनसरिफ उसको कहते हैं जो तनवीन ले सकता है, और गैर मुनसरिफ उसे कहते हैं जो तनवीन नहीं लेता। अब मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कौन से इसम होते हैं जो तनवीन नहीं लेते। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से हैं तो ये आप एक दफ़ा याद कर लेंगे। और जो इसम गैर मुनसरिफ नहीं होगा वो फिर जाहिर सी बात है वो मुनसरिफ हो। ठीक है जी, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? जी सर। हम्म, चले, अच्छी बात है। अच्छा, चलिए, मैं आपसे बाद में नोट्स शेयर कर दूंगा। अभी जस्ट मैं सिर्फ समझाने के लिए साथ साथ कर लेता हूँ इसको। आ, वो अस्मा जो तनवीन नहीं लेते वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से होते हैं। सबसे पहले कुछ इसमें अलम है ऐसे जो तनवीन नहीं लेंगे कभी भी। ठीक है, इसमें अलम समझते हैं किसे कहते हैं? अभी पढ़ा था हमने 2 दिन पहले। किसी का जी किसी सर, जो चीज का नाम हो। नाम हो। जो नाम होगा किसी का, मिसाल के तौर पे अली है, हामिद है, फातिमा है, जैनब है। तो कुछ नाम हैं जो तनवीन नहीं लेंगे, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले जो मुअन्नस नाम होता है। ठीक है, जो भी नाम मुअन्नस है वो तनवीन नहीं लेगा। मसलन खवातीन के जितने भी नाम है, जैसे मरियम है, जैनब है, फातिमा है, आयशा है, जितने भी नाम हैं, इनको जब आप अरबी में बोलेंगे तो तनवीन के बगैर बोलेंगे। मसलन किसी जुमले में ये लफ्ज आते हैं तो आप मरियमू पढ़ेंगे, मरियमू या मरियमा।
फातिमा थू, ठीक है, या जैनबू, आयशा थू, तो इनके एंड पे नून साकिन नहीं आता। इनमें सिंगल हरकत होती है, तनवीन नहीं आती है ऐसे इसमों में। अगर आप कुरान पाक में भी गौर करें, जहाँ जहाँ खवातीन के नाम आए हैं तो वहाँ आपको तनवीन नहीं नजर आया होगा कहीं पे भी, ठीक है। वइज़ क़ालत मरयमु, है ना, तो मरियमुन जी नहीं सर मिलेगा बिल्कुल। आपको कहीं पे भी, ठीक है जी। व मरियम इब्नत इमरान, ये भी आया है, तो व मरियम, मरियमन नहीं मिलेगा आपको। तो मोनस नाम जो होते हैं वो तनवीन नहीं लेते, वो गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। अब इसमें बस ये जहन में रखिएगा कि मोनस चाहे वो हकीकतन हो, यानी मानवी तौर पे मोनस हो, मानवी का मतलब है कि जो यूज भी मोनस के लिए होता है, जैसे जैनब है या मरियम है या फातिमा है, तो ये लड़कियों के नाम होते हैं ना, तो ये हकीकतन भी मोनस है, मानवी तौर पे भी मोनस है, ठीक है। यानी मुराद मानवी तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि लफ्ज तो मोनस है, माना भी वो मोनस है, यानी किसी मोनस के लिए वो नाम बोला जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा लफ्ज है, कोई ऐसा नाम है किसी का जिसमें मोनस की अलामत पाई जाती है, यानी वो लफ्जी तौर पे मोनस है, चाहे वो नाम लड़कियों का ना हो, लेकिन अगर उसमें अलामत पाई जाती है मोहन्नस की, यानी अलामत वही होती है जो हमने पहले पढ़ी थी, जो ताए मरबूता है ना, गोलता। गोलता जिन नामों में आती है, अगर वो नाम लड़कों के हैं तब भी वो गैर मुनसरिफ होंगे, ठीक है। जैसे उसामा है, इक्रिमा है, मुआविया है, तलहा है, तो ये जितने भी नाम हैं, हमजा है जैसे, तो इन नामों पे भी तनवीन नहीं आएगी। हमजतु, तलहतु, उसामतु, मुआवियतु, इकरिमतु, इस तरह से बोलेंगे तनवीन के बगैर। इसी तरह अगर कोई जगह का नाम आ गया, अब जगह तो जाहिर बात है मुजक्कर मुअन्नस नहीं हो सकती ना, इंसानों में तो मुजक्कर मुअन्नस होगा, लेकिन जगह तो जगह है। लेकिन अगर वहां पे भी गोलता है किसी जगह के नाम में आ रहा है तो वो भी मुअन्नस होगा। जैसे मक्का है, मक्का में ताई मरबूता है तो मक्कतू यूज होगा, मक्कतुन नहीं होगा कभी। इसी तरह जद्दा है जैसे, तो जद्दतू बोलेंगे, जद्दतुन नहीं आएगा, ठीक है जी। तो वो इसमें अलम, यानी वो नाम जो मुअन्नस होते हैं, यानी चाहे वो खवातीन के नाम हो या ऐसे नाम जिनमें मुअन्नस की अलामत आती है, वो भी मुअन्नस ही कंसिडर होंगे, वो भी गैर मुनसरिफ। ये बात क्लियर होगी जी। तो मरियम, बिल्कुल जी। जैनब, फातिमा, ये मानवी तौर पे मुअन्नस हैं, इसलिए तनवीन नहीं लेंगे। और हमजा, उसामा, मक्का या जद्दा, ये लफ्जी तौर पे मुअन्नस हैं, इसलिए ये भी तनवीन नहीं लेंगे। आगे चलें जी। बिल्कुल शेख। जी शेख। अच्छा, दूसरा जो है उसके बाद, वो इसमें अलम जो अजमी हो। अजमी का मतलब है कि वो गैर अरबी है, अरबी जबान का जो नाम नहीं है, यानी मुख्तलिफ नाम होते हैं ना लोगों के हर कौम में, तो जो ऐसे नाम है जो अरबी ओरिजिन के नहीं है, जो किसी और जबान के नाम है, वो जब अरबी में आप बोलेंगे तो उन पे तनवीन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे शिराज हमारे यहाँ नाम रखा जाता है, ये फारसी असल का है, तो आप अरबी में इसको बगैर तनवीन के बोलेंगे, शिराजू, ठीक है। कोई अंग्रेजी का नाम है जैसे विलियम है तो विलियमो, ठीक है। मिसाल हमारे यहाँ अपनी लोकल जबानों के कोई नाम होते हैं, तो वो भी जब अरबी में आएंगे तो तनवीन नहीं लेंगे। जगहों के जो नाम है ज्यादातर इसीलिए तनवीन नहीं लेंगे क्योंकि वो अरबी ओरिजिन के नहीं है, मसलन लाहौर है, मसलन पाकिस्तान है, या इस तरह के, जैसे पेशावर है, ऐसे कोई नाम है तो वो अरबी में बगैर तनवीन के आएंगे, लाहौरू, पेशावरू, पाकिस्तानू, तनवीन नहीं आएगी इन पे, ठीक हो गया। इसीलिए कुरान पाक में जहाँ बहुत सारी जगहों के नाम आए हैं जो कदीम कुरान में या हमारे इस्लामी लिटरेचर में, इसी तरह जो अम्बिया के नाम आए हैं, तो बहुत से नामों पे तनवीन नहीं आई। की वजह वही है कि वो नाम अरबी के नहीं है असल में, वो किसी और जबान के नाम थे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है, या इस्माइल है, या इसहाक है, याकूब है, यूसुफ है, यूनुस है, दाऊद है, ये मुख्तलिफ नाम जो हैं अम्बिया के। या मलाइका के नाम है, जिब्रील, मीकाईल, इन पे आपको तनवीन नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है। जैसे मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व रसूलिही व जिब्रीला, तो जिब्रीला है ना,
و मीखाल, इसी तरह उस पर तनवीन नहीं आई। इब्राहीम व इज़ क़ाल इब्राहीमु, तो इब्राहीमुन नहीं होगा। ठीक है जी। तो जो भी नाम गैर अरबी है, यानी किसी भी और जबान का है, वो जब अरबी में इस्तेमाल करेंगे तो तनवीन के बिना करेंगे। आगे चलें जी। जी शेख। जी जी सर। अभी मैं सिर्फ नामों का बता रहा हूँ, ये सब अभी इसमें अलम डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा नाम होता है ऐसे नाम जिनके ये मैं आपको पहले थोड़ा सा, मेरे लिए समझाना भी मुश्किल होगा, लेकिन अभी जैसे मैं सिर्फ नोट करवा देता हूँ, आगे चल के कुछ क्लासेस में आपको समझ आ जाएगी। ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आता है, लेकिन ये मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ कि वो अलिफ नून जायद है। ठीक है। जायद का क्या मतलब है, ये अभी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने वैसे सुना होगा, मेरा ख्याल है अक्सर लोगों के इल्म में होगा कि हम जो मुख्तलिफ अल्फाज अरबी में यूज़ कर रहे होते हैं, तो अ, अरबी में अल्फाज जैसे फैमिली की तरह यूज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ अल्फाज जो मिलते जुलते हैं उनका रूट एक होता है नॉर्मली। तो जो किसी लफ्ज़ का रूट वर्ड होता है ना, जो मादे के हरूफ होते हैं उनको असली हरूफ कहते हैं, और मादे के अलावा जो हरूफ किसी लफ्ज़ में आते हैं उन्हें जायद कहते हैं। तो जो ऐसे नाम हैं जिनके एंड पे अलिफ नून जायद आ रहा होता है, यानी अलिफ नून रूट का ना हो, तो ऐसे नाम भी गैर मुनसरिफ हैं। अब ये चीज़ आप कुछ दिनों में इंशाल्लाह जब हम इल्म सर्फ पढ़ेंगे ना, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि जायद हर्फ को कैसे पहचानते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि हर्फ जायद है या ये किसी के रूट का है। पर फिलहाल बस इसको ऐसे नोट कर लें कि वो नाम जिनके एंड पे अलिफ नून है वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अदनान है, उस्मान है, नोमान है, मरवान है, सलमान है, इस तरह के जो नाम हैं, फरहान है, जिन नामों के एंड पे अलिफ नून आ रहा है आखिर में, वो नाम गैर मुनसरिफ है। यहाँ तक क्लियर शेख, है? इसमें जी। हरकत नहीं बोलना है। हाँ, हरकत बोल सकते हैं, वो तो मतलब आप जो भी हरकत बोलें, लेकिन तनवीन के बगैर बोलेंगे। उस्मानु, अदनानु, अदनानुन नहीं होगा, तनवीन नहीं आई। ठीक है। जी जी। अच्छा, इसी तरह वो नाम जो आ, मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक नाम लिख देता हूँ और फिर उसको बता देता हूँ। अहमद है ना जैसे, ठीक है, तो अहमद, या चले अकरम कर लें, जो भी नाम आपको आसान लग रहा हो, अकरम या इसी तरह के जो नाम होते हैं जो इसकी वजन पे जो नाम आते हैं, जैसे अकरम, अरशद, अहमद, एहसन, अनवर, अनम, जितने नाम भी इस वजन के हैं, यानी जो अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद आगे जैसे तीन हर्फ है, ऐसे नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं। जब अरबी में आएंगे तो तनवीन नहीं लेंगे। अकरमु, अनवरु, असअदु, अरशदु, अमजदु, इस तरह से इस्तेमाल होंगे, तनवीन नहीं लेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी बिल्कुल। जी शेख। अच्छा, फिर इसी तरह उमर जो है, जो हजरत उमर का नाम है, तो उमर या उमर के वजन पे, यानी इसी साउंड के जो बाकी कोई नाम है वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। जैसे जुफर एक नाम है, सुहल है, हुबल है, ये वाले नाम भी तनवीन नहीं लेंगे। उमरू यूज होगा, उमरुन नहीं बोलते कभी भी। ठीक है। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा हदीस में, अन उमर इब्न खत्ताब, तो उमरा, उमरन नहीं पढ़ा होगा कभी। ठीक है ना? जी। ठीक है जी। तो ये पांच तरह के नाम हैं जो तनवीन नहीं लेते। एक है जो मुअन्नस नाम है, चाहे मुअन्नस वो हकीकतन हो या लफ्जन हो। जो अजमी नाम है, वो नाम जिसका आखिर में अलिफ नून है, जो अकरम या उसके तरह का नाम है, यानी उसी आवाज पे जो नाम आ रहा है। और उमर या इस जैसा जो नाम है, इसी आवाज का जो नाम। ठीक है जी। ऐसे नाम जी शेख। गैर मुनसरिफ हैं सारे। अच्छा, इसके बाद आगे है जी इसमें सिफत। इसमें सिफत किसे कहते हैं?
एडजेक्टिव को सर। एडजेक्टिव को, बिल्कुल, ऐसा लफ्ज जिसमें कोई सिफाती मतलब हो, जिसमें किसी चीज को क्वालिफाई का जो करने का कोई किसी मतलब हो। सिफ्त पे हो, जैसे रहमान। हाँ बिल्कुल, जैसे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये वाले अल्फाज जिनमें कोई सिफाती मतलब है, यानी किसी खुसूसियत को कंटेन करते हैं, वो इन्हें हम इसमें सिफत कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, इनमें भी दो तरह के एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो तनवीन नहीं लेते। एक वही जो अकबर की तरह के लफ्ज हैं। अकबर नाम भी हो सकता है, अकबर एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि अकबर का मतलब क्या है? बड़ा। बुलंद। हाँ, बड़ा या सबसे बड़ा। तो बड़ा एडजेक्टिव है ना, ये सिफत वाला मतलब है। तो अकबर सिफत के मानी में भी आ सकता है, अकबर नाम के तौर पे भी आ सकता है। तो दोनों तरह, चाहे नाम हो चाहे सिफत हो, यानी जैसे नाम में भी पढ़ा था ना, ये अकरम, या इधर भी अकबर ही कर लें, तो अकबर का के वजन पे चाहे नाम आए चाहे एडजेक्टिव आए, वो तनवीन नहीं लेगा। और दूसरा वो इसमें सिफत जिसके आखिर में अलिफ नून हो एंड पे, वो भी तनवीन नहीं लेगा। जैसे रहमान आपने बोला, रहमान नाम भी है, और रहमान अगर सिफत के तौर पे आए तो तब भी तनवीन नहीं लेगा। और इसी तरह मिसाल के तौर पे और होते हैं कुछ, जैसे फरहान है, फरहान जैसे नाम है, फरहान सिफत भी हो सकता है, खुश के मानी में भी बोलते हैं फरहान। इसी तरह जवान होता है भूखा, अतशान प्यासा, गजबान होता है गुस्से वाला। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, तो जो अलिफ नून पे आएंगे वो तनवीन नहीं लेंगे। गजबानु, जवानु, अतशानु, या कसलानु, कसलान कहते हैं सुस्त को,